بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس اردو فورتھ سمیسٹر۔ آج بات کریں گے صحافت کیا ہے، صحافت کا ادب سے کیا تعلق ہے، فقاہیہ کالم کیا ہوتا ہے، سمپل کالم کیا ہوتا ہے۔ انسان کو ابتدائی سے تلاش، جستجو اور اپنے ارد گرد سے بہت سی باتیں جاننے کا شوق رہا ہے، اور جو ہی وقت گزرتا گیا ترقی بھی جاری رہی اور نئی معلومات اور اپنے ماحول سے متعلق جاننے کے لیے مختلف نئے ذرائع ابلاغ کی اہمیت بھی بڑھتی گئی۔ ترقی کے ساتھ ساتھ جنگ کی جو تباہ کاریاں تھیں، اس کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے انتشار افراتفری نے صحافت کی ضرورت اور اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ موجودہ زمانے میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے، آگاہی حاصل کرنے کے لیے، اطلاعات بہم پہنچانا اور مصروف ترین انسان کی اشد ضرورت ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب صحافت اپنے فرائض جو ہیں وہ بخوبی انجام دے سکے۔ لفظ صحافت عربی کے لفظ صحیفے سے ماخوذ ہے، جس کے معنی صفحہ، کتاب، رسالہ کے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام صحیفہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحیفہ سے مراد ایسا مطبوعہ مواد ہے جو وقفوں سے شائع ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام اخبارات و رسائل صحیفے ہیں، اور جو لوگ اس کی ترتیب، تحسین اور تحریر سے وابستہ ہوتے ہیں انہیں صحافی کہا جاتا ہے، اور ان کے پیشے کو صحافت کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، سامنے آتی ہے کہ بنیادی طور پر صحافت سے مراد وہ چھپا ہوا مواد جو کہ حالات حاضرہ سے متعلق رپورٹ ہوتی ہے، خاص طور پر اخبارات یا روزناموں کی صورت میں، وہ ہے۔ مگر 20ویں صدی کے ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ کی ایجادات کی بدولت اب صحافت جو ہے وہ صرف چھپائی کی صورت تک محدود نہیں رہ گئی، بلکہ اس کا دائرہ وسیع الیکٹرانکس میڈیا تک پھیل گیا ہے۔ موجودہ دور میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا کا بھی دور ہے، اور بہت اس کی ضرورت اور اہمیت ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ جس کونے میں بھی کوئی خبر ہو، کوئی واقعہ پیش آیا ہو، کوئی حادثہ ہو، تو الیکٹرانک میڈیا اسے بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کرتا ہے اور اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ صحافت کئی قسم کی ہوتی ہے، جن میں روزنامے، ہفت روزہ اخبار، ڈائجسٹ، رسالے، پیشہ ورانہ گروہی رسالے یہ بھی ہوتے ہیں، اور ریڈیو، ٹیلی ویژن سے وابستہ باتیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور صحافت کی تعریف اس طرح سے ڈاکٹر شاہد نے کی ہے کہ صحافت خبر ہے، اطلاع ہے، جانکاری ہے۔ یہ عوام کے لیے، عوام کے بارے میں تخلیق کیا گیا مواد ہوتا ہے۔ یہ دن بھر کے واقعات کچھ تحریری صورت میں آواز کے ساتھ ملا کر، تصویر کے ساتھ سجا کر، لوگوں کی خواہش کے مطابق اس کے پیش کیا جاتا ہے۔ نئے طریقے جاننے کے اب یہ نکل آئے ہیں، جو کہ ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ وہ صورت ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ صحافت جدید وسائل کے ذریعے عوامی معلومات رائے عامہ، عوامی تفریحات کے باضابطہ مستند اشاعت کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ اب اس سارے معاملے میں سچائی بہت اہمیت رکھتی ہے، تاکہ لوگوں کو مختلف معلومات، انکشافات جو بھی حاصل ہوں وہ حقائق کے ساتھ ہوں۔ سچائی اور انکشافات کا پتہ لگانا ہی صحافت ہے، جو عوام کو سچائی اور عام واقعات سے باخبر رکھنا سب سے پہلا فرض ہے، سچائی ہے، جس کے اوپر صحافت کی عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ ادب اور صحافت۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں، ادب اور صحافت دونوں کا تعلق انسانی زندگی سے مربوط ہے۔ صحافت میں جو کچھ سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات نہیں ہوتے۔ یہی صورت ہے، یہی صورتحال ادب کی بھی ہے۔ ادب کی بنیاد بھی انسانی زندگی سے وابستہ ہے، مطلب یہ دونوں میں انسانی معاشرہ، ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کا موضوع اسی کو بنایا جاتا ہے۔ اور اب موضوع تو ایک ایسی چیز ہے جس کو برتنے کا انداز ان کا الگ الگ ہے۔
बात तो एक वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस्तेमाल ये उनका अलग होता है। एक अदीब उसे अपने ख़यालात और फ़िक्र के मुताबिक अपनी तहरीर में लाता है, जबकि एक सहाफ़ी वाक़यात की हूबहू तस्वीर पेश करता है। एक अदीब का लिखा हुआ फ़न पारा कई इंसानों के लिए इस्तिफ़ादा का बायस बनता है, लेकिन वो क्लासिक का दर्जा रखता है और एक जो अरसे तक इससे लोग वाबस्ता वादा करते रहते हैं, और फिर इसको तख्लीक करने के लिए भी मखसूस वक्त नहीं होता। एक अदीब जब चाहे जितना चाहे वक्त ले सकता है और अपने ख़यालात का इजहार जितना चाहे कर सकता है। एक अदीब की मर्ज़ी है कि अपने ख़यालात तहरीर कैसे करे और कब करे, जबकि एक सहाफ़ी का किरदार एक अदीब से इस तरह मुख्तलिफ है कि उसे वक्त की पाबंदी करना पड़ती है। तहरीर में ज़ाती ख़यालात की बजाय सच्चाई पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। अदब और सहाफ़त के दरमियान एक नाजुक रिश्ता है। अगर ये लाजिम और मलजूम भी हैं, तो इनके दरमियान एक दूसरे से अलग इनको नहीं किया जा सकता। यानी कि ये मिसाल उस पानी मिले दूध जैसी है, जिससे अदब और सहाफ़त अलग नहीं हो सकते। इसी तरह दूध पानी से भी, पानी दूध से भी अलग नहीं हो सकता। डॉक्टर शाहिद लिखते हैं कि सहाफ़त में भी कहीं कहीं ऐसे मुकाम आते हैं जहां अदब और सहाफ़त एक हो जाते हैं। फिर अखबारों में लिखे हुए कालम और मज़ामीन अदीबों के लिखे हुए होते हैं। रिसालों में भी ज़्यादातर अदीब ही लिखते हैं। बस सहाफ़त और अदब को अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। मजीद लाहौरी लिखते हैं कि मैं सहाफ़त को अदब समझता हूँ, लेकिन उसका ज़्यादा हिस्सा हंगामी है, दवामी नहीं। रोज़मर्रा के वाक़यात पर जो लिखते हैं वो उन वाक़यात के साथ ही ख़त्म हो जाता है। अदब चाहे हंगामी हो या दवामी, एक दिन के लिए हो या हमेशा के लिए, अदब बहरहाल अदब है। और सहाफ़त को अदब नहीं, अदब का जुज़ कहा जा सकता है, कुल नहीं, मुकम्मल साथी नहीं, लेकिन उसके साथ उसका ताल्लुक़ ज़रूर हो सकता है। अब कालिम क्या है? कालिम अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मानी है, इससे मुराद है सतून, खंबा या थम। उर्दू इंसाइक्लोपीडिया में इसके लिए लफ्ज़, जो कालम का लफ्ज़ है वो है सतून का, जो अखबार का मौजू या उन्वान वाला वो हिस्सा जिस पर अखबार का इन्हसार होता है, या किसी भी मुनज़्ज़म कितार में चलने वाली चीज़ को भी कालम कहते हैं। इस्तिलाही मानी में ये फ़्रांसीसी कालमन और लातीनी ज़ुबान में कोलोमन से माखूज़ है, जिसके मानी खंबा या सतून ही हैं। अखबार नवीस इस फ़न की इब्तिदा यहाँ पर जंग अव्वल के आखिरी वक्तों में हुई, जंग अज़ीम अव्वल। कालम अखबारी ज़ुबान की कदरों की शनाख्त करता है कालम निगार, और जितनी अच्छी खबर होगी उतना अच्छा कालम होगा। अच्छी खबर की बुनियाद क्यों, क्या, कब, कहाँ, कौन पर होती है। जैसे इंग्लिश में वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। उर्दू में काफ और इंग्लिश में डब्ल्यू है। कालम के बारे में इब्न इंशा कुछ इस तरह से रकम तुराद हैं कि मैं कालम को ऐसे समझता हूँ, मज़मून, जिस तरह मज़मून बेकरां चीज़ है, इसी तरह कालम भी है। अताउल हक कासमी के जो एक कालम है वो कार्टून होता है, जैसे जिसमें कालम नवीस अल्फाज से खाका तैयार करता है। कालम निगार की ज़िम्मेदारी मुआशरे में वजूद पजीर होने वाले नज़रियात, तहरीकात का मुशाहिदा करना है, और मुआशरे के मजबूर व बेकस अवाम के लिए शमाए फ़िरोज़ा भी कालम निगारी सहाफ़त का दायरा में आती है। और ये इतना वसी है कि समाजी, सियासी, इखलाकी, तमद्दुनी, हमागीर वसत और मानवियत से कौन इनकार कर सकता है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इसके बाद हम देखेंगे कि फ़काहिया कालम क्या है। फ़काहिया दरअसल अरबी का लफ्ज़, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, मुश्तक है इससे जिसके मानी हंसने हंसाने के हैं। इसकी सिफ्त फ़काहत है, जिसके मानी ज़राफ़त, खुशदिली, खुशतबई वगैरह के हैं। फ़काहिया कालम में मज़ाहिया, तंज़िया बातें पेश की जाती हैं जो कारें इनको तफरीह और दिलचस्पी का सामान मुहैया करती हैं।
ये अखबार का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो कालम जिसे क़ारीन बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, दूसरे कालमों की निस्बत इसमें ज़्यादा ये कदीम इसकी किस्म है और इसमें मिज़ाह निगार बहुत खूबसूरती से मुआशरे के बहुत सी ऐसे रवैयों पर रोशनी डालता है जो ये सिर्फ़ जिसको पढ़ कर लोग हंस पड़ते हैं, बल्कि बग़ैर उकताहट के वो कालम निगार संजीदा मौज़ूआत से भी रोशनास करवा देता है। फ़काही कालम क्या है? फ़काहिया उर्दू सहाफ़त में फ़काहिया कालम निगारी की तारीफ़ काफ़ी पुरानी है, 1 सदी से ज़्यादा अरसा पर मुहित है। सहाफ़त में फ़काहिया कालम निगारी एक ऐसी अहम बात है जिसके बग़ैर फ़काहिया कालम के बग़ैर अखबार मुकम्मल भी नहीं होता। अखबारात की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग देखते हैं कि अखबार में कौन कौन से कालम निगार हैं जो तहरीर कर रहे हैं, अपनी उनकी जो लिखी हुई बातें कहाँ कौन से अखबार में छपती है। बरसीर के साहब पर नज़र डालें तो कालम नवीस, खसूसन फ़काहिया कालम नवीस का हमेशा मकबूल रहे हैं अवाम में। ये अखबारात में बेशुमार मौज़ूआत हैं जिससे मुआशरे की आइनादारी होती है, इन कालमों के ज़रिए हिस्सा बनते हैं। और अखबारात में बाज़ मुस्तकिल कालम होते हैं जिनमें दीनी, तिब्बी, साइंसी और बहुत से ऐसे पस मंज़र के साथ ये मवाद पेश किया जाता है कि सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि ये समझते हैं कि अखबारात का सबसे अहम और दिलपसंद हिस्सा कालम होता है जिसे क़ारीन नहायत शौक़ से पढ़ते हैं। इसमें कालम निगार बहुत ही अच्छे तरीके से मुआशरती रवैयों पर रोशनी डालता है, जैसे कि यूनुस जावेद भट्ट ने मज़ाहिया कॉलम नवीसी में कामयाब अपने जो कालम हैं उन्होंने लिखे हैं और अपना लोहा बनवाया है। उन्होंने वज़ीर तालीम के बारे में ये कालम लिखा कि हमारे इशफ़ाक़ अहमद साहब हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान अनपढ़ों ने नहीं पहुँचाया बल्कि पढ़े लिखों ने पहुँचाया, और इनसे मिलकर बंदा खुश होता है कि शुक्र अदा करता है कि ख्वानदगी की शरह नाखानदी अफराद से भी गिरी हुई है। और इसके बड़े फ़ायदे भी हैं कि इंसान वज़ीर तालीम भी बन सकता है, क्योंकि अदालत में न ये बयान दे देना कि मैं अनपढ़ हूँ बहुत से मुकदमों से, बहुत सी बातों से बच जाता है। जैसे सूबा सरहद के एक वज़ीर थे कि उन्होंने बताया कि वो शेरपाव की हुकूमत में वज़ीर तालीम थे। फिर अफजल ख़ान के अबूरी दौर में भी उस बना पर वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें वज़ीर मजहबी अमूर बना दिया गया। और आजकल एहतसाब अदालत में उनका मुकदमा चल रहा है जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि मैं सिर्फ़ 5 जमातें पढ़ा हुआ हूँ। कहते हैं कि ये भी बताने की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि सिर्फ ये बता देते तो काफ़ी था कि मैं वज़ीर तालीम था। बहुत से मज़ाहिया कालम यूनुस जावेद ने अपने फ़काहिया कालम नवीसी में लिखे, अपना लोहा मनवाया। इस मौजू पर बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे कि ज़फ़र इकबाल, सादुल्ला खान बर्क, मुख्तार अली नैयर का कालम बोलूँ कि ना बोलूँ, ज़मीर जाफ़री, अज़ीज़ अहमद, यूनुस जावेद भट्ट, अताउल्ला कासमी, बहुत से नाम इसमें आएंगे जिनको आप फ़काहिया अंदाज में वो लिखते हैं, मज़ाह में लिखते हैं, लोगों को पढ़कर दिलचस्पी होती है और अखबार बाज़ औक़ात इन्हीं इनके नामों से बिकते हैं। ये जो अदब के साथ सहाफ़त का ताल्लुक़ और कालम क्या होता है, फ़काहिया कालम नवीसी क्या है, इसको आपने सुना और इसको लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख़यालात से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।